Okay, now ladies and gentlemen, it's time to watch our guest of honor because he's not here, he's not joined us here at this event. So we have a special video from Shri V. Muralidharan, Minister of State for External Affairs. जोरदार तालियां बजाते हैं उनके लिए और देखते हैं स्पेशल वीडियो को. Sri Prakash Javadekar ji, Member of Parliament and former Union Minister for Information and Broadcasting, Environment and Heavy Industries, Dr. Gyaneshwar Mule, Member NHRC, Justice Sri M.M. Kumar, Member NHRC, Dr. Sadhana Shankar, Principal Director General, Department of Income Tax, Sri Rajat Kapoor, MD, Indian Diaspora Club, Sri Sanket Saha, Director, Kiran Institute of Career Excellence Private Limited, distinguished guests, faculties and students, Namaskaram and a very good evening to all of you. It's my great pleasure to join you all at the launch of study material for Civil Services Examination. I appreciate and recognize all those who have been involved in preparing the materials and who have been mentoring civil services aspirants. I can easily say without an iota of doubt that civil services examination is one of the toughest in the world. From around 6 lakh candidates appearing every year, only 800 brightest minds are selected for the civil services. The selection process, or rather the filtering mechanism, is so rigorous and meticulous. What comes out as a result is polished minds to serve this great nation. I note that the preparation has seen a sea change over the years. Some 20 years ago, before widespread internet access, the awareness for taking civil services examination was very low. It concentrated only in the urban areas and big towns. Over the years, thanks to media, internet, the awareness and interest of students, even in remotest villages, has increased. It's now no more urban specific. I can see a lot of students clearing examination from financially backward, differently abled, daughters of farmers, workers, and from remote corners of India. It's a good sign. With enormous amount of materials and information available in internet, there is always an issue of problem of plenty. I keep hearing from some aspirants that they do not know how to select information from internet or how to choose study materials. Efforts like bringing together a compendium of information to help students to prepare in an effective manner are very helpful. We have been facing the unprecedented challenges of COVID during the last 2 years. I understand that the medium for preparation has become online. This helps wider reach and the aspirants are increasingly adapting to the new realities. Friends, as we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, the coming 25 years of Amrit Kal is very important for India and thus to the world. The government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has been undertaking far-reaching reforms, archiving old laws to bring in positive changes on the lives of common people. Civil servants, in the words of Sri Vallabhbhai Patel, as the steel frame of India, would have to shoulder greater responsibilities to take our nation forward. I am particularly confident of the capabilities of youth of today. They have conviction, positive attitude, and willingness to stand up to the occasion. They are change makers and have a lot of opportunities in front of them to bring smiles on everyone's life. Civil service is a unique and good avenue for the youth. Friends, I am happy to note that 400 students across various colleges of Maharashtra have already been provided with free coaching classes, and free books will be provided to these students by Indian Diaspora Club, Kiran Institute of Career Excellence Private Limited. The efforts and initiatives like this will surely enhance and help aspirants of civil services to prepare for examination more effectively. I personally believe that successful preparation would entail proper guidance, consistent effort, dedication, innovative approach, and positive attitude. Outcomes depend on the combination of these parameters. In conclusion, I extend my wishes for this initiative and to all those who are involved. Thank you. Hands together and welcome Shri Prakash Javadekar Sahab.
ज्ञानेश्वर मुळे, जस्टिस कुमार, मंच पर सभी मान्यवर भाइयों एवं बहनों, पहले तो आप सबको बधाई दूंगा कि मुळे सर ने जो कहा कि 10 लाख में 1,000 होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि आज जो कार्यक्रम में आए हैं यहाँ ये रेशो बदलेगा और अच्छे खासे संख्या में अधिकारी बनेंगे। क्योंकि अगर मन में विश्वास ही नहीं है, मन में उमंग ही नहीं है, तो कुछ भी साध्य नहीं होता। मैं राजनीति में हूं, आज तक 50 साल हुए मुझे काम करते हुए, तो इतने चुनाव देखे, आज तक एक भी उम्मीदवार मुझे नहीं मिला कि जो कहता है कि मैं हारूंगा। वो जीतने का जज्बा होना, विश्वास होना खुद पर, यह भी एक बहुत जरूरी है। लेकिन उसी की दूसरी बात भी है कि जैसे मैडम ने कहा प्लान बी क्या है, तो वो अपना अपना तय करना है। कितने दिन प्लान करके जिंदगी में कितना देना है इसके लिए। मैं बैंक में काम करता था, तो मैं जब ऑफिसर बना, यानी प्रमोशन आया और पत्र आया, तो हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो मेरी पत्नी एमकॉम कर रही थी। 3 दिन हमने विचार किया कि भाई नेशनलाइज बैंक में एट दिस यंग एज आप पहला ऑफिसर बनते हो, आगे जाते 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 बहुत टॉप पोजीशन पे पहुंचोगे, ये निश्चित था। दिस इज ए सिक्योर लाइफ। लेकिन दिल है, पैशन है, तो मुझे तो राजनीति करनी थी। हम अभी अभी जेल से बाहर आए थे इमरजेंसी के खिलाफ लड़कर। तो हमने दोनों ने मिलके 2-3 दिन विचार करके, क्योंकि वो भी जेल में थी, तो वो भी एक्टिव, हाँ अलग अलग होता है। तो हमने प्रैक्टिकल विचार करना होता है ना, उसको भी सारी महिला नेता कह रही थी कि आप राजनीति में आओ। तो हमने पहला निर्णय लिया कि 2 नहीं करेंगे, 1 ही करेगा, क्योंकि घर भी तो चलाना है, बच्चों को अभी ठीक करना है। तो एक घर चलाएगा, एक राजनीति में जाएगा। और उसमें भी कौन करेगा, तो मैं तैयार था। इफ शी वॉन्ट्स टू डू, ओके आई एम रेडी। मैं अच्छा हाउस हस्बैंड बनूंगा और अच्छा काम करूंगा। लेकिन हमने तय किया, फिर मैं यहाँ आया, अब इतने साल काम किया, यहाँ आए। लेकिन मोदी जी एक वाक्य हमेशा कहते हैं, मैं कभी ये नहीं कहता कि अब मैं यहाँ तक ये बन गया, मंत्री बन गया, ऐसा नहीं बोलते हम। क्योंकि हमारे मन में मूल धारणा है कि कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए हमें काम करना है, जिंदगी जीना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब तो कुछ तो बन ही जाओगे, कुछ ये अधिकारी बनेंगे, कुछ बी प्लान के अनुसार बनेंगे, कुछ ऐसे ही बनेंगे। वो 3 इडियट में वो जाता है, वो पहले तो निराश होकर छलांग लगाता है,
लेकिन बाद में टूटा फूटा इंटरव्यू में जाता है तो वो सब देखते हैं उसका फाइल, तो बोले और वो जवाब जिस तरह से देता है तो होपलेस केस लगती है। लेकिन वो कहता है आपकी जो अपेक्षा है और मैं जो हूँ फर्क है, तो आप आपकी नौकरी आपके पास रखिए, मेरी फाइल मुझे दे दीजिए, कुछ तो बन ही जाऊंगा, ऐसा वो कहता है। तो कुछ तो बन ही जाते हैं और बनेंगे सभी, लेकिन मन में चाहिए। लेकिन जहां भी काम करोगे, अधिकारी जहां भी बनोगे, सबसे पहला है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर पब्लिक सर्वेंट। हमारा पैसा तनख्वाह लोग देते हैं, गरीब आदमी देता है, उसका ख्याल करना है। कल मैंने न्यूज़ पढ़ी कि डॉक्टर्स कोई स्ट्राइक कर रहे हैं मुंबई में। एक आईएएस अधिकारी के पास गए, सेक्रेटरी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उसने उनको गेट आउट, ये वो क्या क्या गालियां दी, उसके कारण स्ट्राइक हुआ। यानी मैं अगर वहां निर्णय करने वाला होता तो मैं तुरंत उसको सस्पेंड करता, क्योंकि आप इसलिए नहीं है, आपको ये देखो लोग आपके पास क्यों आते हैं। कुछ समय नहीं जा रहा है इसलिए आपके पास मिलने के लिए थोड़ा ही कोई आएगा, वो पिक्चर देखेगा। लेकिन वो आता है क्योंकि उसका कुछ काम है जो अटका है। आपके पास आता है क्योंकि उसके कोई डिफिकल्टी है, तो हम उससे उसी तरह से पेश आना चाहिए। द बेस्ट ऑफिसर इज दैट पर्सन ओनली हु इज ए गुड ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ। अच्छा आदमी होना यह सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको ही पूछता हूं, जरा याद करिए, आपको इतने सालों के बाद कौन से टीचर आपको अब अच्छे लगते हैं, स्कूल के हो या कॉलेज के हो? कौन टीचर आज भी कहते ही मैंने जैसे प्रश्न पूछा तो आपके मन में 2-3 नाम तुरंत आए होंगे? उसका विश्लेषण करो। जो आप में इंटरेस्ट लेते थे, जो आपको सही गाइडेंस करते थे, अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने के सिवाय भी एक ह्यूमन बीइंग अच्छे थे, तो वही आपको अच्छे लगते हैं, याद आते हैं। तो ये हमें गुड ह्यूमन बीइंग होना है। किसी भी नौकरी का अब 21वीं सदी में तो एक ही नियम है कि रोज आपको सीखना पड़ता है। मैडम ने कहा कि मुझे ई फाइल सारा करने के लिए सीखना पड़ा, रोज सीखना ही पड़ता है। और वो सीखना इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, और आनंद आता है। मैं आज मुळे जी और नवनीत वालों, नवनीत नहीं क्या है ये, किरण पब्लिकेशन, इन दोनों ने जो आयोजित किया वो बहुत अच्छा है स्टडी मटेरियल। लेकिन मैंने देखा, अब मेरा तो एक अलग इंप्रेशन है, मैंने इनको बताया, लेकिन वो बोले ये सिलेबस जैसा ही है, जो सिलेबस है वैसा ही ये बुक है। तो अब मुझे सिलेबस ही देखना पड़ेगा। मैं तो अब जरा आईएएस के मूल ट्रेनिंग के इसमें ही जाऊंगा क्या करते हैं, लेकिन रोज सीखना है। कुछ भी बनने पर शिक्षा में मदद करो। दुनिया में शिक्षा जितना एम्पावरमेंट कुछ भी नहीं है। अभी जिसने कहा कि जिन विपरीत परिस्थितियों में स्टूडेंट्स आते, आप में से बहुत लोगों ने वो काम किया होगा, तो कोई ना कोई शिक्षा में मदद करता है, उसका बड़ा महत्व है। एक मैं हर साल कुछ न कुछ छात्रों को मदद करता हूँ। एक छात्र था, उसकी माँ खेतिहर मजदूर थी, लेकिन वो बोर्ड में टॉप किया, उसको मेडिकल में एडमिशन मिली। अब वो शेड्यूल ट्राइब था या क्या था, तो उसके कारण उसको फ्री हॉस्टल था, फ्री एजुकेशन था, ये था, सब था।
लेकिन फिर भी कुछ पैसे लगते हैं कि नहीं? तो साल में कुछ पैसे जो लगते हैं वो मैंने देता। तो वो हमारे घर आता था, मेरे बच्चे भी उस समय कॉलेज वगैरह में ही थे, तो उनकी दोस्ती भी हो गई थी। तो एक दिन वो बाहर गए घूमने, तो मेडिकल कर रहा है लड़का, और हमारे बेटे ने पूछा, आइसक्रीम की दुकान में गया एक, और उसने कहा आप क्या फ्लेवर लोगे? बोले मैंने आज तक आइसक्रीम ही नहीं खाया है। समाज की ये भी स्थिति है, हमें समझना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा में मदद करने का संकल्प करना ही चाहिए, जितना हो करना है मदद लोगों को, क्योंकि दैट इज एम्पावरमेंट। एक खेतिहर मजदूर की बेटी उसी जिला में अगर जिलाधिकारी बनती है तो उसका सामर्थ्य केवल शिक्षा का है, दूसरा किसी भी चीज का नहीं। इसलिए नथिंग इज बिगर देन हेल्पिंग गुड स्टूडेंट्स टू गेट फर्दर एजुकेशन। एक ऐसा ही विचार मन में आया, वो आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ये बड़ा एक तरह से इनफॉर्मल कार्यक्रम है, लेकिन आप भी उस मूड में हो। भारत को बदला किसने? दुनिया को बदला किसने? इसका उत्तर आप सब लोग माफ करेंगे मुझे, अधिकारी नहीं बदलते, ये दूसरे लोगों ने बदला। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, स्वामीनाथन जी थे। मिल्क हम पाउडर बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज दुनिया का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हम करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुरियन ने किया। टेलीकॉम के स्विचेस नहीं होते थे हमारे पास, वो स्विच की टेक्नोलॉजी सैम पिट्रोडा ने लाई। उन्होंने देश में नया युग लाया। सैटेलाइट हमारे सबसे लाडले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने किया। आज भारत एटॉमिक एनर्जी में भी और एटॉम बम भी, एटॉमिक पावर भी, दोनों तरह की। डॉक्टर होमी भाभा है, एक भी आईएएस अधिकारी नहीं था। ऐसा है, आप सबके सामने ये वाक्य मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं उल्टा मानता हूं कि अधिकारी की फिर भूमिका क्या होती है कि नया कुछ कर रहे उनको प्रोत्साहन देना, उनको मदद करना। अब मेरा लास्ट मुद्दा एक छोटा है कि देखो दुनिया बदल गई। मैं 98 में महाराष्ट्र के आईटी टास्क फोर्स का चेयरमैन था, तब मैं अमेरिका में गया था। हम स्टीव जॉब्स 2 दिन हमें प्रेजेंटेशन दिखाई दिए। 98 में आईफोन नहीं था, तो वो ऐसा बता रहा था कि ये मैं हैंडहेल्ड तैयार कर रहा हूँ, इतने इतने फीचर्स होंगे उसमें। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा, ये ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन आज लोग ऐसा देख कर चलते हैं, कल से ऐसा देख कर चलेंगे। और हुआ, हमने देखा है, जिंदगी बदल गई। ये जो नया ज्ञान है उसके आधार पर जो नई इंडस्ट्रीज है, नई इनिशिएटिव्स है। कल मैं अमेज़ॉन में कुछ न कुछ रोज एक 50 मिनट का अच्छा डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, इतना समय निकालता हूँ। तो अमेज़ॉन कैसे हुआ, बेजोस की कहानी बहुत अच्छी है, प्रेरणादायी है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, सबकी कहानियां ऐसी है। अपने रोज के जिंदगी में जिन्होंने बदलाव लाया, जोमेटो, स्विगी, बुक माई शो, इतना ही क्यों, मैकडोनाल्ड, आखिर वड़ा पाव ही है ना, क्या है दूसरा? पैटी है, ब्रेड है, थोड़ा बाकी सैलेड है, चीज़ है।
वड़ा पाव का, लेकिन वो भी स्टोरी देखने लायक है। 50 मिनट का ही वो डॉक्यूमेंट्री है कि वो दो भाई थे, बहुत डिसिप्लिन से करते थे, वो एकदम क्वालिटी उनकी वैसे की वैसी सालों साल आती थी। लेकिन एक उनको मार्केटिंग वाला आदमी मिला, वो पार्टनर हुआ, आगे वो मालिक बना, उसने इनको पैसा बहुत दे दिया, शेयर भी दे रखा, और उसने ये सब जगह जाना चाहिए। क्योंकि ये क्या करते थे, वो थोड़े ही दुकान उनके, और जैसे हर यात्रा कुछ होती है तो आठवडी बाजार आपल्याकडे होतो, त्याच्यात जसं इकडेही जायचं मग तिकडे जायचं तिकडे जायचं असं नाही केलं ते. आणि त्यांनी काढले आता 40,000 पेक्षा जास्त दुकानं झाली एकच स्टँडर्डायझेशन. अहो आता महाराष्ट्रात सुद्धा म्हणजे मला नवी नवी मुलं इतकी उत्साहाने करतात काम. मी पाहिलं येवले चहा, त्याच्या आता शाखा निघायला लागल्या. दूसरा एक मैंने दुकान देखा 15 प्रकार के चाय. ऐसा बहुत कुछ होता है. तो उद्योजकता भी बहुत महत्वपूर्ण है. तो मन में दो ही निर्णय चाहिए. एक मन साफ चाहिए, दूसरे के लिए एक कंपैशन केवल नहीं, एक उसमें विश्वास और उससे ज़्यादा उसके प्रतिष्ठा का आदर करने की आदत होनी चाहिए. उसको भी प्रतिष्ठा है, गरीब हो तो भी क्या हुआ, सम्मान से व्यवहार करो, अच्छे इंसान बनो, रोज अध्ययन करो, और नए नए क्या हो रहा है दुनिया में, हम मेरी पैशन कहाँ है ये समझने को भी कभी कभी समय लगता है. वो पैशन समझेंगे तो मुझे लगता है आप एवरीबडी विल बी IAS, सिविल सर्वेंट or some very successful person in life. Thank you. All the best.